Chavez, Faiza, Shahid. Chavez, Faiza, Shahid. Can anybody respond? Am I audible? No, because I can't hear you. Okay. Hello, guys. Am I audible? Okay. Cool. 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 Shalir, let's start from where we left in the last class. And I think we have covered probability distribution, right? Now just give me a minute. Yes. So let's start from where we left. And I think we have left yeah. So I think we have left on probability distribution, the last topic of probability. And so usually, I mean, in the last years, it has happened, the syllabus was more in probability. So we had probability distribution, mean of the probability distribution, mean of a random variable, and variance of a random variable. And other than that, we also had Bernoulli distribution, right? But this time the syllabus has reduced, so we won't be having Bernoulli distribution in our syllabus, and as well as variance of the random variable also. So in the last class, we have covered probability distribution, and I think you have been given some questions on that for the same. So if you were able to solve those questions, then good. No, random variable is there, Shahid, and mean was also there. But I mean, we have seen that in the last class also, Shahid. Random variable is there, mean is also there, but variance is not there, and Bernoulli distribution is also not there. I don't know. I mean, if we got an updated syllabus after that, but I think I have downloaded this on somewhere in August or September. In that syllabus, we had random variable and as well as mean. So we had like 3 or 4 more topics, but those topics are not there, but these two are there. So we have covered probability distribution of a random variable in the last class, and you have been given some questions. So please feel free to reach out if you were not able to solve any question, and if you have any doubt. The 6 questions that you were given in the class, please feel free to reach out to me if you were not able to solve those questions. Because probability will be finished. Like in next 10 minutes, we will finish the probability. Because you're left with only the last topic of this probability that is in our syllabus, which is mean of a random variable. Let's solve a question in that case. Because that will, yeah, so this question is good. Question number 5 from exercise 13.4, which says that find the probability distribution of the number of successes in 2 tosses of a die, where a success is defined as, okay, so what is your random variable? Number of success, right? Now, what do you mean by a success? Right? That would be our first question, because we want to understand what are the values, what are the numerical values that our random variable can take, right? And then we will be finding out the probability of those, probability of having a numerical value for that particular random variable, right? So in this case, the question is,
The question says, find the probability distribution, right? Oh, sorry, I'm using actually a different pen tab, so the writing is not good for the next 10 to 15 minutes, but I'll catch up. Oh God, this is really bad. Sorry. Yeah, so probability distribution of what? X, where X is what? X is your number of successes, right? And the random experiment is where X defines number of successes. X define number of successes, and the random experiment is tossing or throwing of two dice. Throwing two dice, right? Now, in the first question, in the first part, your number of successes are defined as number greater than 4, right? Number of successes in two tosses of a die. Okay. Okay. We are not throwing two dice. Okay. This is also a different problem. I mean, throwing two dice and throwing a dice twice are both different things, right? I mean, throwing two dice is a simultaneous experiment. It means that you are throwing two dice simultaneously. You have two dice and you will get two outcomes in a single throw, right? But when we are throwing a dice twice, we will get only one outcome in one throw. If we are tossing the dice twice, it means that we are doing the same experiment two times, correct? So we will get two outcomes, but not simultaneously. First, we will get the first outcome of the first dice, and then when we throw the dice, I mean, throw the same dice twice, then we will get the second result or second outcome, right? Uh, okay, I'm audible to everyone, right? Harif and Chavez as well. Hello, sir. Okay, cool. So we are solving a Can you, problem. Yeah. sir, when did we do this topic? Like, I was not there, I think, so. Or, did you do this already? Variable distribution. Yes. Yes, we have solved this in the last class, Chavez. Which happened on, I think, Saturday or Friday. I'm not sure, but yes, it was covered in the last class. Sir, if possible, you can just send that recorded lecture because I was not there. Like, I went somewhere else. Sure, you'll get the lecture. You can also understand this very easy, Chavez. Just get me, I mean, just go with me in this question and you will get it. This is not the toughest portion of probability. The toughest portion was Bayes theorem and total probability. This is a very not I won't say the easiest, but yes, it's not that difficult, intermediate difficulty level, and you can understand this through a question. So I'm solving a question, just focus on the question and you will get it. So what we need to do is first I have defined these technical terms before. You can see that from the lecture, but I will give you a gist like how to solve a question of probability distribution. Okay. So you can check this question number 5 from exercise 13.4 from your NCERT book. 13.4 question number 5. Let's come to it quickly. Okay. And I believe that you will be able to get it. So the question says, find the probability distribution of the number of successes in two tosses of a die. So two tosses of a die, first of all, let me erase this and write the correct statement. Two tosses of a die. This is our random experiment. Two tosses of a die. Also, whenever you are not able to understand what is written there,
You can just confirm, you can just ask me and I'll confirm whatever is written because my handwriting is not coming out good. I'm using a different pen tab today. Yes. So we have to find out the probability distribution. First of all, what are we doing here? First thing is this. We are finding out probability distribution. So the question is, for which thing or for which object you are finding the probability distribution? We always find the probability distribution of a random variable. Now the question is, what is a random variable? Random variable will always be defined. You can denote a random variable with X, Y, whatever you can. You can use a alphabet from the English dictionary. Generally, we use X or Y, right? But you can use any alphabet. That is a different point of view. But we will always be using mostly X, right? So we will define our random variable with X. Now you have to understand what is X. In this case, we have to find out the probability distribution. Let's read the question again. We have to find out the probability distribution of the number of successes. So always focus whatever you are doing here, right? So always focus on the sentence which is written after probability distribution of. So probability distribution of the number of successes. So here your random variable is number of successes, right? Now what is a success? Success will change every time, right? So you have to understand what is your random variable through the question. Now the question says, first of all, let's understand what is the random experiment here. Random experiment here is two tosses of a die. We are tossing a die twice. Okay. So we will get, so let's say, let's do this random experiment in your head first. If I toss a die once, I can get an outcome from 1 to 6, anything, right? Let's say the first toss of the die results in 4. Okay. Now the next toss of the die results in 3. It can be anything. There are 36 possible outcomes. There are 36 possible ways or combinations that can occur. But I'm taking one of that. Let's say we got 4 in the first throw, in the first toss, and let's say we got 3 in the second toss, right? So our random distribution, our random experiment results in 4, 3. Correct? And similarly, we can have 35 other combinations, which can be 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. We know all the combinations, right? So this is the random experiment that is happening here. Now it says that we have to find out the probability distribution of the number of successes. Okay, so it means that X, which is our random variable, is number of successes, right? Now what is a success? So what is a success? It is given where a success is defined as, first part, number greater than 4. So a success is defined if you get a number greater than 4, right? If you get a number greater than 4. So now the next question is, whenever you are able to identify your random variable, then you need to know what are the values. So what is a random variable? I haven't answered that question. I told you that you can check this in the last video. But just for your understanding, a random variable is something that will take Sir. numerical values. Yes. Yes, Shavis? Sir, I was not able to find that last video. I'll send you that video. I'll tell the management to send you that video. Okay, sir. But let's go through with me in this question. Okay. So a random variable is something that will take numerical values. For example, here X represents number of successes, right? So, and what is a success? Yes, Success is number greater than 4. So if you get a number greater than 4, it's a success. Correct? yes, Now let's think about this. What can I get in the first toss? Any number from 1 to 6? Correct? yes. Would I get a number greater than 4? Is it sure? No. I may or may not get a number greater than 4. But a success is defined whenever you get a number greater than 4. Right? So let's now think in this particular random experiment, what are the values that X can take? X is number of success. So either X can take 0, means that either we won't get a number greater than 4 on any toss of the die. I'll toss the die first and then I'll toss the die again. Correct? There are 2 tosses. Now, either I will get a number greater than 4 on the first dice, or I won't get a number greater than 4 on the first dice. Similarly, either I will get a number greater than 4 on the second dice, or I won't get a number greater than 4 on the second throw as well.
correct? So X, which is number of success in this case. So first is X is defined as, or success is defined as, in the first case, success is defined as number, getting a number greater than 4. Number greater than 4. So if X is the number of successes, that is X represents how many times can I get a number greater than 4? Either 0. So X can take values. First of all, we need to understand this, that what are the possible values, what are the possible numerical values that X can take? Either X would be 0, or X would be 1, or X would be 2. What does that mean? If X is 0, Like in both it will get sorry, फिर से बोल. I didn't hear you. like in the case of 2, in both it will get the greater than 4. Yes. So if X is 0, it means that we are saying we didn't get a number greater than 4 on either of the toss. If X is 1, it means that we are saying we got one number greater than 4 and one number lesser than 4, or one number less than or equal to 4. And if X is 2, we are saying that we got a number greater than 4 on both of the tosses. Can X be 3 here? Because there are No. only 2 tosses involved, so X cannot be 3. I mean, if X is 3, you are saying, एक second, Austin है क्या class में? No, just let me check. Oh, Austin is not there. So every one of you can understand Hindi, right? If Yes. somebody has a problem, then just tell me. ओके, तो देखो X का ना सिंपल सा हिसाब है. रैंडम वेरिएबल कुछ भी होगा, रैंडम वेरिएबल के लिए उसने एक लाइन दी होगी, एक सेंटेंस दिया होगा हमेशा डिफाइन करने के लिए, राइट? जैसे यहाँ पे उसने दिया है कि भाई X है मेरा, मतलब उसने X नहीं बोला रैंडम वेरिएबल, बट आप हमेशा X ही मान के चलेंगे रैंडम वेरिएबल को. तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि रैंडम वेरिएबल है मेरा नंबर ऑफ सक्सेस. ठीक है जी, नंबर ऑफ सक्सेस आपका रैंडम वेरिएबल है. आप सक्सेस से क्या मतलब है आपका? सक्सेस से मेरा मतलब है नंबर ग्रेटर देन 4. ठीक है, तो अगर मेरे को डाई थ्रो करने पे 4 से बड़ा नंबर मिलता है तो ये मेरे लिए सक्सेस है, राइट? अब सबसे पहली बात करिए कि हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है. एक्सपेरिमेंट है, हमने 2 बार एक डाई को टॉस किया. ओके, इफ वी आर टॉसिंग अ डाई ट्वाइस, तो इस केस में हमारे पास 4 से बड़ा नंबर कितनी बार मिल सकता है? 2 ही बार मिल सकता है मैक्सिमम. 3 बार तो मिल नहीं सकता, क्योंकि 3 बार तो आपने टॉस ही नहीं की ना डाई. जितनी बार आप टॉस कर सकते हो किसी भी चीज को. अभी फॉर एग्जांपल इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में मेरे पास 2 टॉसेज ऑफ अ डाई दिया हुआ है. तो अगर 2 टॉसेज ऑफ अ डाई दिया हुआ है, तो मैं 2 से ज्यादा तो टॉस ही नहीं कर सकता. तो 2 से ज्यादा बार तो मेरे को नंबर ग्रेटर देन 4 वैसे भी नहीं मिलेगा, राइट? और मिनिमम क्या वैल्यू हो सकती है एक्स की? 0. तो इसी तरीके से सबसे पहला काम होना चाहिए हमारा कि रैंडम वेरिएबल जो भी मेरा डिफाइंड है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है. अगर हम ये सही कर लेंगे ना, तो हमारा अगला पार्ट सही होने के ज्यादा चांसेस होंगे. बट अगर हम यही सही नहीं कर पाए तो अगला पार्ट सही होगा ही नहीं कभी भी. So first task would be to decide what are the possible numerical values of your random variable. In this case, your random variable is number of successes, and success is number greater than 4. तो बेसिकली रैंडम वेरिएबल x ये कह रहा है कि क्या मुझे नंबर ग्रेटर देन 4 मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कितनी बार मिल सकता है. तो सबसे पहले तो हमने कहा हाँ हो सकता है 9 मिले. आपको दोनों चांस में आपका नंबर 4 या 4 से छोटा है, या फिर आपका एक चांस में नंबर 4 या 4 से बड़ा आ सकता है, 4 से बड़ा आ सकता है, और एक बारी 4 या 4 से छोटा है, या फिर दोनों ही चांस में, दोनों ही टॉस में आपका नंबर ग्रेटर देन 4 हो जाए. तो x की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो है 0, 1 और 2, राइट? जस्ट गिव मी मिनट. ठीक है जी, सबसे पहली बात तो आपको हर क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के सबसे पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी
कि हमारा x क्या क्या वैल्यूज ले सकता है। और अगर आपने ये बात समझना शुरू कर दिया तो फिर आप समझना शुरू कर देंगे कि ये कुछ नहीं है, हम बस प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। और हमने प्रोबेबिलिटी निकालने के तरीके को और आसान बनाना चाहा है। अगर आपसे सही बताऊं तो बात तो बस इतनी सी है। और इससे ना हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। अभी आप देखोगे ना, तो ये जो 36 केसेस हम बना के आए थे थोड़ी देर पहले, वो सारे के सारे 36 केसेस इन तीनों x0 x1 x2 के अंदर कवर हो जाएंगे। अभी आपने 36 केसेस बनाए थे, वो सारे के सारे 36 केसेस x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 के अंदर कवर हो जाएंगे। अभी मैं दिखाता हूँ। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब है आपका दोनों ही टॉस पे नंबर 4 से बड़ा नहीं आया। यानी कि फर्स्ट या तो फर्स्ट टॉस पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, एंड सेकंड टॉस पे भी 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। टोटल कितने नंबर्स, टोटल कितनी चॉइसेस, 16। पहले पे भी 4। तो देखो अब कौन कौन सी चॉइसेस हो सकती हैं, जैसे कौन कौन से आंसर्स हो सकते हैं हमारे, 1 1 1 2 1 3 1 4, 2 1 2 2 2 3 2 4, 3 1 3 2 3 3 3 4, ऐसी 4 1 4 2 4 3 4 4। अगर आपके ये आउटकम्स आते हैं इन टू टॉसेज ऑफ डाई के, तो इसका मतलब है x इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि आपको एक भी सक्सेस नहीं मिली, राइट। अब ऐसे x इक्वल टू 1 का सोचो। x इक्वल टू 1 का मतलब एक बार सक्सेस मिली। तो या तो पहली डाई पे 5 और 6 है, दूसरे वाली पे 1 2 3 4 है, या फिर पहली डाई पे 1 2 3 4 है 1 2 और 3 दूसरे डाई पे 5 6 है। करेक्ट है बात। ये yes टोटल 16 चॉइसेस बन जाएंगी फिर से, क्योंकि अगर पहली पे 5 और 6 है और दूसरे वाली पे 1 2 3 4 है तो टोटल 8 बनते हैं। 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, सिमिलरली 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4। और ऐसे ही फिर 8 और रिपीट हो जाएंगे। अगर फर्स्ट पे 1 है, दूसरे पे 5 है, फर्स्ट पे 2 है, दूसरे पे 5 है, फर्स्ट पे 3 है, दूसरे पे 5 है, फर्स्ट पे 4 है, दूसरे पे 5 है, या फिर फर्स्ट पे 1 है, दूसरे पे 6 है, फर्स्ट पे 2 है, दूसरे पे 6 है, फर्स्ट पे 3, सेकंड पे 6, फर्स्ट पे 4, सेकंड पे 6। तो टोटल आपके पास 16 केसेस ऐसे बनेंगे जहां पे आपको एक सक्सेस मिल रही होगी। टोटल कितने हो गए, 34, सॉरी 32। 16 0 के लिए, 16 1 के लिए। अब एक बार x इक्वल टू 2 के लिए भी देख लेते हैं, चार ही आएंगे देखना। 36 तो टोटल केसेस है ही ना भाई, 36 से ज्यादा कॉम्बिनेशन तो बन ही नहीं सकते किसी भी केस में, राइट। अब देखो अगर x की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि दोनों नंबर ग्रेटर देन, दोनों टॉस ग्रेटर देन 4 में रिजल्ट कर रहे हैं। इसका मतलब पहले डाइस पे भी 5 या 6 है, दूसरी डाइस पे भी 5 या 6 है। टोटल केसेस 4, 5 5 5 6 6 5 6 6। क्वेश्चन तो खत्म हो गया, इससे ही हमने प्रोबेबिलिटी भी निकाली भाई। 16/36 आई पहले वाले की, x इक्वल टू 0 की, x इक्वल टू 1 की भी 16/36 आई, क्योंकि टोटल फेवरेबल केस 16 है, टोटल केसेस आई मीन फेवरेबल केसेस 16 है, टोटल केसेस 36 है। सिमिलरली x इक्वल टू 2 की 4/36 आई। हमें इतना सा काम करना है। अगर हम ये समझने लगेंगे एक बारी कि किस तरीके से हम रैंडम वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं, तो आप फिर बहुत ही आसानी से प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेंगे। आपको प्रोबेबिलिटी निकालने वाले पार्ट में मैं नहीं मानता कि कोई प्रॉब्लम होगी। मतलब हो सकती है, पर होनी नहीं चाहिए आइडियली, वो अलग बात है, बट हो सकती है प्रॉब्लम, मैं वो नहीं कह रहा। हम निकालेंगे सबकी प्रोबेबिलिटीज। बट अगर तुम ये समझना स्टार्ट कर दोगे एक बार कि हम रैंडम वेरिएबल को किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, तो काम बहुत आसान हो सकता है ना। और और हमें यही करना है बस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। सबसे पहले हमें रैंडम वेरिएबल को समझना है। रैंडम वेरिएबल को समझ के उसकी पॉसिबल न्यूमेरिकल वैल्यूज निकालनी है। तो जैसे यहाँ पे x की पॉसिबल न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं 0 1 2। अब मैं इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दूंगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो कुछ नहीं यार, बोले तो ये, ओ भाई, बोले तो बस ये, ज्यादा कुछ नहीं। कि आप एक तरफ x की वैल्यूज लिखते जाओ, एक तरफ उस x की प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज लिखते जाओ। कैसे जी, ये सिंपल ही है यार काफी। x लिख दो पहले तो, कि ये है भाई हमारा रैंडम वेरिएबल। क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, 0 ले सकता है, 1 ले सकता है, 2 ले सकता है। अब px लिख दो, px माने प्रोबेबिलिटी ऑफ x, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल। क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, पहली प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग 0, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसे लिखते हैं इस चीज को, अगर आप इसको अलग से लिख के दिखाना चाहते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 में निकालना चाहता हूं। यानी कि इसका मतलब है किसी भी टॉस पे नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं आया, मेरे को एक भी सक्सेस नहीं मिली।
कितने केसेस, तो आप जानते हैं कितने केसेस। इसका मतलब है फर्स्ट टॉस आपका 1 2 3 4 दे रहा होगा, और सिमिलरली सेकंड टॉस भी यही दे रहा होगा, 1 2 3 4। 16 cases. अब ये प्रॉब्लम है, ये टफ क्वेश्चन है थोड़ा। तू बता 16 कैसे। अच्छा चल, एक डाई को थ्रो कर 2 बार, एक कोई इसका आउटकम बता मेरे को, कोई भी, क्या क्या आ सकता है तेरे हिसाब से। पहले टॉस पे क्या आया, कुछ भी मान ले, कुछ भी आया, बता पहले टॉस पे क्या आया, तूने थ्रो करी डाई। Sir, 1 to 4. नहीं नहीं, पहले ऐसे ही सोच, छोड़ दे 1 2 4 को। तूने एक डाई थ्रो करी, क्या क्या टॉस, क्या क्या रिजल्ट कर सकता है ये टॉस, 1 से लेके Sir, 6 तक 1 कुछ to भी कर 6. सकता है ना। चल मान ले 1 आया, ठीक है। अब सेकंड टॉस का कुछ रिजल्ट मान, एज्यूम कर। Sir, 1 to 6. 1 to 6, पहले वाले के पास भी 6 चॉइसेस हैं, दूसरे वाले के पास भी 6 चॉइसेस है, टोटल कॉम्बिनेशन देखना चाहते हैं दोनों के मिला के कितने आ सकते हैं, 36, 6 into 6। या फिर ऐसे देख ले कि पहले पे 1 आया तो दूसरे पे 6 चॉइसेस अवेलेबल है ना, 1 से लेके 6 तक। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ऐसे ही फिर फर्स्ट पे अगर 2 आया तो फिर से 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। समझ आई बात। तो टोटल 16 हो जाएंगे ना इस केस में। Yes, sir. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, टोटल 16, क्योंकि 16 फेवरेबल केस है इसके, जब हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 होगी, और टोटल आउटकम्स कितने थे, 36। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, जानते हैं हम क्या होगा, या तो फर्स्ट टॉस पे 5,6 आ रहा होगा और सेकंड वाले पे 1 2 3 4 आ रहा होगा, या फिर फर्स्ट टॉस पे 1 2 3 4 आ रहा होगा एंड सेकंड टॉस पे 5,6 आ रहा होगा। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 निकालना चाहते हैं, ये बात समझ आई। Sir, 16. फिर से 16/36 हो जाएगा। इस केस में बस 2 केसेस बनेंगे, ये ध्यान रखना। फर्स्ट पे 5,6 एंड सेकंड पे 1 2 3 4। और 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 का मतलब होता है प्लस, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ये ध्यान रखना, ये सेट्स में भी बताया था मैंने, वैसे ऐसी बात नहीं। अच्छा सेट्स तुमने पढ़ा नहीं मुझसे। मैथ्स में अगर और बोला गया तो चॉइसेस ऐड होंगी, एंड बोला गया तो मल्टीप्लाई होंगी। एंड माने साइमल्टेनियसली दोनों काम हो रहे हैं, फर्स्ट टॉस ये है एंड सेकंड Sir, टॉस or ये है, means मतलब union. सॉरी फिर से बोल। Or means union. और मीन्स ऐड, एंड मीन्स मल्टीप्लीकेशन। Okay, sir. अब और माने मैं इसलिए बता रहा हूँ ये बात, क्योंकि देखो फर्स्ट में एंड है तो 2 चॉइसेस इसकी थी फर्स्ट टॉस की, सेकंड की 4 चॉइसेस थी, तो 2 into 4 8 होगा। एंड आया क्योंकि क्योंकि दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, 5 1 5 2 5 3 5 4, सिमिलरली 6 1 6 2 6 3 6 4। या और फर्स्ट पे आ रहा होगा 1 2 3 4 और सेकंड पे आ रहा होगा 5 1 6। तो फिर से 8 चॉइसेस और है। सो 8 इन फर्स्ट 8 इन सेकंड, टोटल 16। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 निकाल लेंगे, उसमें फर्स्ट पे भी 5,6 आएगा, सेकंड पे भी 5,6 आएगा। तो दिस इज हाउ वी ड्रॉ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। क्या ये बात समझ आई। ये हम कर चुके हैं पहले, बस मैं रिवाइज Yes, कराना sir. चाहता था और एक अच्छा क्वेश्चन भी कराना चाहता था सब लोगों को। तो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। ओए अच्छा कोई नहीं, सेकंड से स्टार्ट करें तो क्या ही कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 को भी लिख देता हूँ। आप जानते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा। आंसर शुड बी 4/36। तो रैंडम वेरिएबल ना हमेशा इसी तरीके से डिफाइंड होगा कि वो आपके सारे केसेस को कवर कर लेगा। इसीलिए जब हमने लास्ट क्लास में लिखा था कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x1 x2 x3 अप टू xn तक मान लो हो सकती हैं, और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू x1 की p1 p2 p3 अप टू pn तक हो सकती है,
तो मैंने वहां पे लिखा था सबका सम 1 होना चाहिए। ऑल द प्रोबेबिलिटीज शुड रिजल्ट इन अ सम ऑफ 1। वाई? क्योंकि ये सारे टोटल केसेस मिलकर 30 उतने ही होने चाहिए जितना सैंपल स्पेस था। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 16 केसेस फर्स्ट वाले केस को सपोर्ट कर रहे हैं, 0 वाले को, 16 1 वाले को, 4 2 वाले को, तो टोटल मिला के 36 ही हुआ जो कि सैंपल स्पेस था आपका। तो हमेशा प्रोबेबिलिटीज का सम, जब आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लोगे, आप कैसे पता करोगे कि ये करेक्ट है? दो बातें आपको याद रखनी है। एक, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे सब प्रोबेबिलिटीज का सम 1 है। और दूसरा, हर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही आनी चाहिए। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, बट 0 से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि नेगेटिव नहीं हो सकती कभी भी, और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। ये बात तो हमें पहले से ही पता है। तो बस आप यहां से देख लीजिएगा आपका क्वेश्चन सही है नहीं। अगर आपकी ये कंडीशंस मीट कर रही हैं तो बिल्कुल सही होगा। हाँ जी, क्लियर है क्वेश्चन सभी लोगों को? इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। चलो फिर सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं यार एक बार। फटाफट से सेकंड पार्ट कर लेते हैं और फिर हम इसका लास्ट टॉपिक खत्म कर लेंगे। कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला है बस, कि किस तरीके से हमें, अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम मीन कैसे निकालें। मीन हम जानते हैं बाय द वे, बट फिर से एक बार हम डिस्कस करेंगे मीन के बारे में। सेकंड पार्ट में बोल रहा है 6 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट वन डे। हाँ जी, हटा दें इसको। एवरीबॉडी डन? अब इसी के सेकंड पार्ट में बोला गया है, हाउ आर यू डिफाइनिंग ए सक्सेस दिस टाइम इज 6 अपीयर्स ऑन 6 appears on at least one toss. 6 appears on at least one toss, right? Can you tell me the values that x can take this time? X क्या है? Random variable. How are you defining your random variable? We are defining our random variable as कि अगर 6 appear होता है एक भी टॉस पे तो हमें सक्सेस मिल गई। क्या आप मुझे x की वैल्यूज बता सकते हैं? ट्राई करो। गलत बताओगे मुझे पता है, टेंशन मतलब, बट फिर भी ट्राई करो। देखो गलती से ही तो सही कर पाएंगे। अगर तुम गलतियां ही नहीं करोगे तो सही तो फिर पहुंच ही नहीं पाओगे दोस्त। गलतियां कर करके ही सब सीखते हैं भाई, और मैथ्स तो गलती करके ही सीखा जाएगा। गुड शाहिद, आई वुड लाइक टू हैव एन एक्सप्लेनेशन, बट मैं पूछ लूंगा जो मुझे पूछना है अभी। बट गुड है, आंसर करेक्ट है। एनीवन एल्स? एक्स क्या क्या वैल्यूज ले सकता है? एक्स कह रहे हैं सक्सेस। सक्सेस क्या है? सक्सेस है अगर 6 एक भी डाई पे अपियर हो जाता है तो। एंड व्हाट हैपेंस इफ बोथ ऑफ देम गिव 6? शायद दैट इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन। व्हाट हैपेंस व्हेन बोथ ऑफ द डाइस गिव्स यू 6? हाँ, आंसर तेरा करेक्ट है। अब देख ऐसे समझते हैं इस बात को, इसने क्या बोला है, ये कह रहा है कि सक्सेस हो जाएगी अगर एक पे भी 6 आ गया। अगर दोनों पे भी 6 आ गया तो भी वो सक्सेस ही है उसके लिए तो।
समझ आई तेरे कोई बात? मतलब उसने कहा कि मेरे लिए सक्सेस है एक भी डाइस पे 6 आ जाए, एक डाई पे 6 आया मेरे लिए सक्सेस हो गई, तुमने कहा दोनों पे 6 आ गया तो उसके लिए दो सक्सेस नहीं हुई वो। उसने कहा मैं तो यही कह रहा था ना भाई कि एक पे भी 6 आ जाएगा तो मेरे लिए सक्सेस हो जाएगी, दोनों पे आ जाएगा तो भी सक्सेस ही है, तो भी एक ही सक्सेस है, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से भी, राइट? सो एक्स हियर कैन टेक आइदर 0 और 1। 0, एक्स की वैल्यू 0 माने एक भी डाई ने हमें 6 नहीं दिए, और एक्स की वैल्यू 1 माने दोनों में से कम एक डाई ने तो 6 दिया ही है, हो सकता है दोनों ने भी 6 दिया हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट? सो एक्स इज इक्वल टू 0 वाले जो केस है, इसका मतलब है फर्स्ट पे आया कुछ भी 1 से लेके 5 तक, सेकंड पे भी आया कुछ भी 1 से लेके 5 तक। एक फर्स्ट पे आया कुछ भी 1 से लेके 5 तक, और सिमिलरली सेकंड पे भी आया कुछ भी 1 से लेके 5 तक। तो कितने टोटल केसेस? 25 टोटल, आई मीन फेवरेबल केसेस इसमें, और टोटल केसेस 36। पहले पे भी 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है, दूसरे पे भी 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। सिमिलरली एक्स इज इक्वल टू 1 का मतलब एक सक्सेस मिली, सक्सेस का मतलब फर्स्ट पे या तो 6 आ जाए और सेकंड पे आ जाए आपका 1 से लेके 5 तक कुछ भी। इनफैक्ट सेकंड पे 6 आएगा तो भी चलेगा, राइट? क्योंकि दोनों पे 6 आ रहा है तब भी ठीक है, हमें तो सक्सेस मिल रही है। और फर्स्ट पे आ जाए 1 से लेके 5 तक कुछ भी, ऑब्वियसली फर्स्ट पे भी 6 आ सकता है, बट हमने वो केस पहले ही ले लिया, नहीं तो टोटल एक केस ज्यादा ले लेंगे, 12 हो जाएंगे। वैसा नहीं हो सकता, मतलब 6 6 तो हम ऑलरेडी काउंट कर ही चुके हैं ना ऊपर ही। तो एक्चुअली फॉर अ बेटर क्लैरिफिकेशन हमें ऐसे लिखना चाहिए कि पहले पे आ जाए 1 से 5 तक कुछ भी, सॉरी पहले पे आ जाए 6 और दूसरे पे आ जाए 1 से 5 तक कुछ भी, या फिर पहले पे आ जाए 1 से 5 तक कुछ भी, सेकंड पे आ जाए 6, या फिर दोनों पे ही 6 आ जाए भाई, उसमें कौन सा दिक्कत है? टोटल केसेस इसके 25, और टोटल केसेस इसके इफ यू विल चेक तो 11 ही आएगा, गिन भी सकते हो इसको, और आना भी 11 ही चाहिए था भाई। देखो इस पे एक चॉइस, इसके 5, तो 5 × 1 5, फिर सिमिलरली इस पे भी 5 × 1 5, 10 + 1 11, तो 11 इसके 25 उसके, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं, एंड वी कैन सर्टेनली डिफाइन। अब देखो यहीं पे ही समझ लो, मीन भी समझ लो, मीन में भी कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं एक्चुअली। मीन का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आप किसी भी रैंडम वेरिएबल का अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना पा रहे हैं तो फिर आप उसका मीन भी बना पा रहे हैं। कैसे जी? चलो यहीं से ही सीख लेते हैं, पहले इसका निकाल भी लेते हैं बल्कि, फिर मैं अगले पेज पे फॉर्मूला वॉर्मूला सब लिख दूँ। तो एक्स ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या है वो निकाल लेंगे। पहली बात तो एक्स की वैल्यू 0, दूसरी एक्स की वैल्यू 1, इसकी प्रोबेबिलिटी 25/36, इसकी प्रोबेबिलिटी 11/36। नाउ लेट्स आल्सो डिस्कस कलर, कलर नहीं चेंज कर सकते कर तो सकते हैं, कर सकते हैं।
लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट मीन। तो मीन कैसे निकालते जी एक रैंडम वेरिएबल का? सिंपल है, सिग्मा। क्या होता है सिग्मा का मतलब? ऐड करना है। सिग्मा एक्स आई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स आई। समझ लो इस बात को क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो ऐसे थोड़ा देसी तरीके में समझ लो क्या कर रहे हैं। हर एक्स को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? हर बार एक्स की वैल्यू को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। जितनी बार भी एक्स की वैल्यूज आ रही होगी हर बार यही काम करते जाएंगे। यानी कि अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना, इसका मीन निकालना चाहता हूँ इस रैंडम वेरिएबल का, तो मैं निकालूंगा 0 × 25/36 प्लस, प्लस माने सिग्मा की वजह से प्लस आ रहा है, प्लस 1 × 11/36। अगर कुछ और वैल्यूज भी होती तो मैं ऐसे ही सबका मल्टीप्लीकेशन लेता जाता, सबको ऐड कर दूंगा। ये मीन की वैल्यू होती है। एंड आई स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n। ये मीन का फॉर्मूला है। मैं अगले पेज पे लिखूंगा इसको पूरा, बट अभी बस आपको समझाना चाहता हूं। तो अगर मैं मीन निकालना चाहता हूं इस केस में, तो इट्स वेरी इजी। हाउ वुड आई फाइंड आउट द मीन? ऐसे 0 × 25/36 प्लस 1 × 11/36। अब मीन बता क्या रहा है? इंपॉर्टेंट बात आती है ये। मीन का मतलब क्या है? मीन की सिग्निफिकेंस क्या है? मीन ये बता रहा है कि सक्सेस के कितने चांसेस हैं। तो मीन मोटा मोटा यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई 36 टाइम्स अगर आप ये काम कर रहे होंगे तो 11 टाइम्स आपको सक्सेस मिलेगी। सक्सेस क्या है? 6 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट वन टॉस। यानी कि अगर आप 36 टाइम्स ये काम करेंगे तो 11 टाइम्स आपको सक्सेस मिलेगी। तो मीन हमें एक सेंट्रल वैल्यू बताता है हमारे रैंडम वेरिएबल की। अगर मैं पिछले क्वेश्चन पे जाऊं, जस्ट गिव मी अ मिनट, तो यहां पे अगर मैं मीन निकालूंगा तो मीन मुझे क्या बताएगा? मीन बताएगा मुझे कि कितनी बार मुझे नंबर ग्रेटर देन 4 मिलेगा। क्या चांसेस है इस बात के? आप इसका मीन निकालना चाहते हैं? बहुत इजीली है, निकल जाएगा बहुत इजीली। तो मीन फॉर दिस, मैं यहीं पे लिख रहा हूं साइड में अभी। मीन वुड बी 0 × 16/36। 0 × 16/36 प्लस 1 × 16/36 प्लस 2 × 4/36। टोटल आएगा 24/36। ये बता आपको क्या बता रहा है? 24/36 को आप सॉल्व करोगे तो 2/3 आ जाएगा। ये बता आपको क्या बता रहा है कि अगर आप 3 बार थ्रो करोगे ना, तो 2 बार चांसेस हैं कि आपको नंबर ग्रेटर देन 4 मिल ही जाएगा। कोई से ना कोई से थ्रो पे तो मिल ही जाएगा, है ना? क्योंकि आप 2 बार थ्रो कर रहे हो। एक बार थ्रो करते तो ये आंसर नहीं आता, कुछ और आता। वो आप देखना क्या आएगा। 1/3 आना चाहिए आइडियली, क्योंकि एक बार अगर मैं थ्रो करूंगा तो 4 से ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी तो 5 या 6 ही आएगा, तो 2/6 होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से 1/3 आएगा, बट क्योंकि 2 बार थ्रो कर दिया इसलिए प्रोबेबिलिटी 2/3 हो गई। ज्यादा चांसेस हो गए ना 4 मिलने के। तो ऐसे ही हम मीन निकाल लेते हैं। अब एक बार मीन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो यही था मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, कुछ है नहीं, ज्यादा लोड है नहीं इसमें भी। मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो लेट्स से एक्स हमारे पास कोई रैंडम वेरिएबल है जिसकी वैल्यूज हो सकती हैं x1, x2। मुझे नहीं पता क्या क्या वैल्यूज हैं, पर ये कुछ वैल्यूज हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल x1 अभी थोड़ी देर पहले 0 था, x2 थोड़ी देर पहले 1 था, जब x की वैल्यू 0 1 2 3 पॉसिबल थी। एंड लेट्स से कैपिटल X ये n वैल्यूज ले सकता है। मुझे तो पता नहीं यार, हर बार रैंडम वेरिएबल को मैं अलग अलग तरीके से डिफाइन करूंगा। जब भी जैसे डिफाइन करूंगा हर बार कुछ कुछ सर्टेन वैल्यूज आ सकती हैं x की।
right? And let's say probabilities of x being xi is pi. इसका मतलब है कि अगर x की वैल्यू x1 में चाहता हूं, स्मॉल x1 चाहता हूं, तो प्रोबेबिलिटी होगी p1। x की वैल्यू x2 चाहता हूं तो प्रोबेबिलिटी होगी p2। ऐसी x1 की वैल्यू होगी pn, राइट? तो मैं अगर इससे चाहूं तो मैं इसको बहुत इजीली अपना एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना के दिखा सकता हूं इस तरीके से। ठीक है जी। तो ये था x और ये था प्रोबेबिलिटी ऑफ x की वैल्यूज लेट्स से x1 x2 अब तो कहां तक जा रही है, xn तक जा रही है। तो हम कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी x1 के होने की है p1, x2 के होने की है p2 और इसकी xn के होने की है pn। तो मैं मीन कैसे निकालूंगा जी? मीन को सबसे पहली बात तो हम एक्सपेक्टेशन ऑफ x भी बोलते हैं। मीन हैज आल्सो अ डिफरेंट नेम व्हिच इज एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन या मीन दोनों एक ही बात है। इनफैक्ट और भी बहुत सारे नाम होते हैं एक्सपेक्टेशन के। आप इसको जनरली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? या तो ऐसे, एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x, एक्सपेक्टेशन को आप e से डिफाइन करते हैं, या फिर आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू। सॉरी, ये सिंबल तो बिल्कुल सही नहीं बना है। म्यू। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ई ऑफ एक्स और म्यू दोनों एक्सपेक्टेशन या मीन को ही डिफाइन करते हैं। और आप कैसे लिखेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स या म्यू की वैल्यू? आप सारे के सारे कॉम्बिनेशंस को मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और म्यू कैन बी डिफाइन एज x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस डॉट 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 अप टू, हर कॉम्बिनेशन को मल्टीप्लाई करूंगा उसकी प्रोबेबिलिटी से, जो भी सम होके आएगा वो हमारा मीन होगा। मीन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 से बड़ी, 1 से छोटी, कुछ भी, एनीथिंग। बट प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू हमेशा 0 या 1 के बीच में ही होंगी, या 0 और 1 भी हो सकती है। और साथ साथ सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 के बराबर होगा। ये हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। इफ नॉट तो मैं फिर से लिख देता हूं, वैसे तो हमने लिख लिया था। वेयर फर्स्ट कंडीशन ये हमेशा ट्रू होगी और सेकंड कंडीशन ये भी हमेशा ट्रू होगी कि सिग्मा पी आई, यानी कि सारी प्रोबेबिलिटीज का सम फ्रॉम 1 to n हमेशा 1 होगा। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं दैट सिग्मा एक्स आई पी आई स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीन तो फट से निकल जाएगा। ये आपसे 2 या 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, अगर बेस थ्योरम से क्वेश्चन आएगा एक 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में। बेस थ्योरम से श्योर है क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सोचने का ही नहीं है कुछ। अब एक क्वेश्चन कर दो यार, आखिरी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। यस शायद मीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सपेक्टेशन, so they can also ask find the expectation of this random variable. If they are asking find the expectation of a random variable, it means that they are all, I mean only asking about mean.
चलो क्वेश्चन नंबर 10 कर दो फटाक से। तो क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ। अब सॉल्व आपको करना है, आप सब चीजें जानते हैं इसमें। ट्राई करो, नहीं होता है तो मैं हूं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो क्वेश्चन सेज, फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स और एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड्स। मैं दोनों चीजें लिख रहा हूं यहीं पे। ओके, फाइंड द मीन और expected number of heads in three tosses of a fair coin. Expected number of heads in three tosses देखो प्रोबेबिलिटी बहुत बड़ी है। ऐसा नहीं है कि प्रोबेबिलिटी हमें एकदम से आ जाएगी सारी। प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बड़ी है, मतलब मैं बोल रहा हूँ अगर ये बात तो तुम्हें एकदम मान ही लेनी चाहिए। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी की प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हमारी रोजमर्रा की लाइफ में है। और अगर हमारी प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो ना, तो हाईएस्ट पेइंग जॉब्स हो सकती है हमारी। मतलब स्टॉक मार्केट में तो पूरा प्रोबेबिलिटी चलता है। एंड दीज जॉब्स आर नोन एज क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स एंड क्वांटिटेटिव ट्रेडर्स। आई एम ऑल्सो अप्लाइंग फॉर दोज। मैं भी चाहता हूँ उसमें जाना। बट उसके लिए तो बहुत तेज प्रोबेबिलिटी चाहिए, मतलब काफ़ी। तो प्रोबेबिलिटी में काफ़ी कुछ होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, बट अगर आप सिर्फ प्रोबेबिलिटी पढ़ो जीवन में और सब छोड़ के, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में। सिर्फ ये मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ। सिर्फ प्रोबेबिलिटी पूछते हैं वो लोग टेस्ट में और इंटरव्यू में भी। और पैकेजेस होते हैं लाइक करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़। तो अब तुम समझ ही सकते हो कि प्रोबेबिलिटी का क्या स्कोप है। Everything is based on probability. Whether this class will happen or not, it is also based on some probability. There will be some factors which we will have to consider in, and then we will find out the probability of happening of this class or not. So find the mean expected number of heads in three tosses of a fair coin. मैं आपको समझा देता हूँ पहले क्वेश्चन। आपको मीन निकालना है ना, नंबर ऑफ हेड्स का। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे को बता दो रैंडम वेरिएबल क्या है यहाँ पे इन थ्री टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। मैं दो बातें पूछना चाहता हूँ, एक क्या रैंडम वेरिएबल है, एंड सेकंड क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अगर ये दोनों बातें पहचान ली, फिर मैं आगे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। रैंडम वेरिएबल क्या है और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। लेट्स गो विद द बेसिक्स। ठीक है, मैं तूने आंसर सही दिया है, पर रैंडम वेरिएबल ऐसे बोल के नंबर ऑफ हेड्स है ना। अब वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है ना। और रैंडम एक्सपेरिमेंट है हमारा थ्री टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। करेक्ट। तो सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा शायद, उसके बाद अपन लोग मीन पे पहुंच पाएंगे। तो अगर हमसे मीन पूछा गया है, तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो पूछा ही गया है ना। बस ये बताना चाहता था। चलो शुरू हो जाओ, बता दो फटाफट मीन। शायद फिर भाग गया क्लास से, कह रहा था मैं आया नहीं हूँ क्लास, और जब मैं पढ़ा रहा हूँ बता रहा हूँ तो फिर चला गया, क्लास से गायब हो गया। हे शावेज, सुन पा रहे Second, हो? हाँ, आई कैन हियर यू, पर वेयर वर यू? sir, I was having some work, sir, so I had to leave. हैविंग सम वर्क, वेरी गुड। मैं आज अलग से पढ़ा रहा हूँ पूरा, फिर भी नहीं सुन रहा, फिर भी चला गया, फिर कहता है मैं आया नहीं था लास्ट क्लास में। वेरी गुड। चल फिर इसमें निकाल ले। मीन निकालना है हमें, पर मीन निकालने से पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो पहले तो ये समझ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना किसका है, क्या है रैंडम वेरिएबल, क्या है एक्सपेरिमेंट। Sir, एक्स एक्स की वैल्यूज बता मेरे को क्या क्या होंगी, फिर उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल। तो एक्स है यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स, रैंडम वेरिएबल है तेरा नंबर ऑफ हेड्स, और रैंडम एक्सपेरिमेंट है तेरा थ्री टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन।
तो पहले मुझे बताया एक्स की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, यानी कि कितने नंबर ऑफ हेड्स हो सकते हैं थ्री टॉसेज ऑफ अ कॉइन में। बता भाई कितने नंबर ऑफ हेड्स हो सकते हैं, 3 बार टॉस करा मैंने एक कॉइन को, कितने नंबर ऑफ हेड्स मुझे मिल सकते हैं, मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम। काफी टफ क्वेश्चन पूछ लिया क्या शायद इसमें? क्यों भाई? 0 to 3। है ना, 0 to 3 हो सकती है। तो एक्स हमारा या तो जीरो ले सकता है, एक भी हेड ना आए, या फिर एक्स हमारा 1 हो सकता है, एक हेड आ जाए, या फिर एक्स 2 हो सकता है, 2 हेड आ जाए, या फिर एक्स 3 हो सकता है, 3 हेड आ जाए। अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालते जरा। सैंपल स्पेस क्या है बाय द वे, इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस कितना है? 8। 8। करेक्ट। 8 केसेस में से कुछ होंगे एक्स जीरो वाले, यानी कि एक भी हेड नहीं आएगा, कुछ होंगे एक्स 1 वाले, यानी कि एक हेड आएगा, कुछ होंगे एक्स 2 वाले, यानी कि 2 हेड आएंगे, कुछ होंगे एक्स 3 वाले। सबको देख, फेवरेबल आउटकम सबके, प्रोबेबिलिटी निकाल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना ले सबसे पहले तो पूरा। और शायद तुझे तो मुझे फाइनली आंसर देना है मेन का। फायजा, आर यू देयर ऑन द कॉल, आई मीन ऑन द, इन द क्लास?
तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था वाशिंग में। ओह ओके शायद। ओह आई चेक्ड योर मैसेज जस्ट। ट्रैवल्स ये मेरे साथ सॉल्व करा जाओ। मेरे को ये बता एक्स इज इक्वल्स टू जीरो का क्या मतलब होगा। 0 hits. जीरो एक्स। जीरो एक्स क्या है। Like both three tosses will get no hits. हाँ, तो एक्स क्या है। Expected number of एक्सपेक्टेड नहीं, एक्स है नंबर ऑफ हेड्स। एक्सपेक्टेड तो हमें निकालना है मेरे दोस्त। एक्सपेक्टेड तो हम निकालेंगे। मीन निकालना है हमें, इसका मीन बाद में पहुंचते हैं। एक्स है हमारा सिर्फ नंबर ऑफ हेड्स। मीन मैंने अभी समझाया जब तू चला गया था क्लास से। तो मीन या एक्सपेक्टेड दोनों एक ही बात है। मीन या एक्सपेक्टेशन दोनों का एक ही मतलब होता है। और मीन का ही दूसरा नाम एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन तो हमें निकालनी है बट वो अभी बात की बात करते हैं हम। एक्स है हमारा नंबर ऑफ हेड्स। तो एक्स अगर जीरो है तो इसका मतलब है एक भी हेड नहीं आया तीनों टॉस में। राइट। hits. अब ऐसा होना कब पॉसिबल है मुझे बता दे जरा। इसका क्या मतलब हुआ एक भी हेड नहीं आया। यानी कि Both all three are tails. ऑल थ्री आर टेल्स। तो एक ही केस ऐसा होगा ना जिसमें ऑल थ्री आर टेल्स। पहला Yes. भी टेल, दूसरा भी टेल, तीसरा भी टेल। तो एक्स इक्वल्स टू जीरो की क्या प्रोबेबिलिटी हुई। 1/8. 1/8। है ना। अब एक्स इक्वल्स टू वन के बारे में सोच। एक हेड आया। कितने केस। या तो फर्स्ट पे हेड आ जाए और दोनों पे टेल आए, या तो सेकंड पे The हेड आ जाए। three cases. थ्री केसेस। तो कितनी प्रोबेबिलिटी। 3/8. 3/8। अब एक्स इक्वल्स टू टू। Two cases. टू। पानी जल लीजिए आप, जल। जल में ऐसे थोड़ा यहाँ पे ले। चल। नाक डाल ले। एक्स इक्वल्स टू टू के दो केस हैं। एच टी एच। एच एच टी। टी एच एच। तीन केस हैं। Yes. और हाँ तो तीन 3/8। अब लास्ट एक्स इक्वल्स टू थ्री के कितने केस। 1/8. 1/8। बन गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और क्या है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। यही करना है बस बार बार। तो इस प्रॉब्लम को ना ऐसे मत देखिए। न्यूमेरिकल वैल्यूज आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है। पर तू इस प्रॉब्लम को ऐसे पढ़ के देख, पढ़। रीड करना सीख। गिव मी अ मिनट। अगर हम रीड करना सीख जाएंगे इसको सही से तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएगी। मैथ्स रीड करा जा सकता है पूरा। प्रोबेबिलिटी तो पूरा। प्रोबेबिलिटी का यूज भी तो मतलब हम कहाँ कर रहे हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में। तुम्हें ये पता है कसिनोज के बारे में। कसिनोज होता है। तो वहां पे ना ऐसे बोलते हैं हाउस ऑलवेज विंस। हाउस क्या, कसिनो। कसिनो हमेशा जीतेगा। आप कसिनो में खेलने जाओ, आप हारो जीतो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा जीतेगा। कैसे। प्रोबेबिलिटी से भाई। ये सब आप पढ़ोगे आगे जाके अगर आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी तो कैसे जीत रहे हैं वो लोग। तुम्हें पता है प्रोबेबिलिटी क्यों बनाई गई थी। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स स्मोकर्स एंड गैम्बलर्स के लिए। मतलब मेरा कॉलेज ही इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है तो मैं तो स्टैट्स बहुत पढ़ा हूँ। स्टैट्स भी और प्रोबेबिलिटी भी, एंड दीज आर माय टू फेवरेट टॉपिक्स इन मैथ्स। काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी पढ़ ली है अब तो।
तो स्मोकर्स और गैम्बलर्स के लिए हमने प्रोबेबिलिटी डिजाइन करी थी। वहां से हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी का तो काफी यूज है लाइफ में। और अभी तो हमारी जितना ये एआई चल रहा है, तुम्हारा चैट जीपीटी, या कोई भी तुम नई ऐप बनाते हो, या कोई भी तुम प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो, एवरीथिंग इंक्लूड्स प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी से बहुत कुछ कर जा रहे हैं लोग। और सारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का। मतलब मैं भी जो जॉब करने वाला हूँ अभी, वो उसमें प्रोबेबिलिटी का बहुत और स्टैट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। हम भी बैठ के यही निकाल रहे होंगे, लोगों का बिहेवियर विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स। एक्चुअली लोगों का बिहेवियर, टू बी ऑनेस्ट। हमें क्रेडिट देना है किसी को कि नहीं? बैंक, आई बी वर्किंग इन अ बैंक नाउ, एंड माई जॉब role includes, my responsibility is to find out, if we give a loan to a customer, how probable it is that the customer will default on the loan or not. Default on the loan माने कि वो देगा पैसा वापस मेरे को कि नहीं, बस मेरे को यही जज करना है। वो पैसा वापस दे, अब कैसे कैसे फैक्टर्स होंगे इसमें, ऑब्वियसली मेरे पास कहीं ना कहीं से डेटा आएगा। डेटा के बिना तो मैं प्रोबेबिलिटी निकाल नहीं पाऊंगा। डेटा क्या होगा? ये होगा कि कितने बैंक अकाउंट इसके हैं, उन बैंक अकाउंट्स में इसकी ट्रांजेक्शन्स कैसी हैं, क्या ये टाइम से पैसा वापस दे रहा है जो भी इसने लोन लिया है लोगों से, या नहीं दे रहा है, क्रेडिट कार्ड्स यूज करता है कि नहीं करता है, कौन कौन से लोन्स, किस किस तरीके के लोन्स इसने लिए हैं, पर्सनल लोन है, एम्प्लॉयमेंट लोन है, या फिर होम लोन है, या फिर एजुकेशन लोन है, कितने बार लोन लिया है, जब भी लोन लिया है तो डिफॉल्ट करा है कि नहीं, एक बार भी करा है कि नहीं, हर चीज। और उसके बाद हम ये प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि क्या हमें इसे पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और अगर देना चाहिए तो कितना देना चाहिए, कहाँ तक इसकी कैपेसिटी है कि ये वापस कर देगा। बैंक ही सब देख काम करते हैं। यही काम मेरे को करना होगा। तो मैं तुम्हें बस एक छोटी सी एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि देखो, प्रोबेबिलिटी से ही सब कुछ चल रहा है। बैंक्स आर वर्किंग ऑन प्रोबेबिलिटी, एब्सोल्युटली। और सिमिलरली फिर बैंक से बड़े होते हैं इन्वेस्टमेंट फर्म्स, जिनकी और ज्यादा हाई पेइंग जॉब्स होती है। लाइक आई सेड, करोड्स में पैकेजेस होते हैं, और वो और बड़ी चीजें हैंडल कर रहे होते हैं, वो ज्यादा बड़े ट्रांजेक्शन्स हैंडल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल 100 करोड़ हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होगा, एक्सपेक्टेशन एक्चुअली। अगर मैं 100 करोड़ यहाँ पे एक साल के लिए इन्वेस्ट करता हूँ तो कितने पैसे मेरे को मिल सकते हैं वापस, पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बस हमारी कैलकुलेशन है, डेटा है। अब हमारा डेटा सपोर्ट करता है हमें या नहीं करता है। हाँ जी, ये ठीक है। आंसर नहीं दिया शायद। क्या आंसर होगा मीन का? तो आंसर तो छोड़ दो, पहले आंसर तो हमें पता ही है। अगर तुम थोड़ा ध्यान से सोचते ना इस बात को, तो आंसर तो हमें पता ही है। अच्छा छोड़ दे आंसर, पहले ये समझ मेरी बात। एक बार मैंने एक कॉइन का टॉस करा, ठीक है, फेयर कॉइन है। फेयर कॉइन माने इक्वल प्रोबेबिलिटी है हेड के आने की भी, इक्वल प्रोबेबिलिटी है टेल के आने की भी, राइट? तो सर, एक बार अगर मैं टॉस करूंगा तो कितने हेड्स आने चाहिए, मुझे नहीं पता आएंगे कि नहीं। तो वैसे तो आंसर होना चाहिए 0 या 1, है ना? बट अभी मैं एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा हूँ। हाँ करेक्ट है, करेक्ट है शायद आंसर। बट अभी मैं एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा हूँ। एक्सपेक्टेशन माने मैं ऐसे कहूंगा कि भाई 0.5 हेड आना चाहिए, 0.5 टेल आना चाहिए। ऑब्वियसली ऐसे कॉइन खड़ी नहीं हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि कॉइन खड़ी होके आ गई, ये तो आधा टेल आधा हेड दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि मैं अगर एक बार कॉइन टॉस करता हूँ तो 0.5 प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा, है ना? तो अगर मैं 3 बार टॉस कर रहा हूँ तो 1.5 होना चाहिए। भाई आधे चांसेस हेड, फेयर कॉइन है ना। बायस्ड कॉइन होती तो अलग बात है। बायस्ड कॉइन माने कि हेड की आने की प्रोबेबिलिटी कुछ और है, टेल के आने की प्रोबेबिलिटी कुछ और है। जैसे एक क्वेश्चन भी दिया गया है तुम्हारी इस एनसीईआरटी में, मैंने वो छोड़ दिया है। मैं चाहता हूँ तुम लोग सॉल्व करके आओ उसको, और देखो अगर सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
बट अगर मैं 3 बार कॉइन को टॉस कर रहा हूँ, कॉइन को टॉस कर रहा हूँ, तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड्स कितने होने चाहिए? 1.5। 1.5 ही टेल होनी चाहिए अगर फेयर कॉइन है तो, क्योंकि जितनी प्रोबेबिलिटी हेड के आने की है उतनी प्रोबेबिलिटी टेल के आने की भी है। तो निकालने की भी जरूरत नहीं थी भाई, आंसर तो पता ही था हमें। जैसे ही उसने क्वेश्चन लिखा था आंसर तो हम वहीं से ही दे सकते थे। अब ऐसे हम और भी तेज हो सकते हैं प्रोबेबिलिटी में, अगर थोड़ा दिमाग से सोचना शुरू करें। तो यही सब चाहते हैं बैंक्स और इन्वेस्टमेंट बैंक्स, कि आप प्रॉब्लम्स को ऐसे समझो। आप इन फॉर्मूले पे मत जाओ, फॉर्मूले तो हैं ही, सब चीज़ों के बने ही हुए हैं। बट अगर आप ऐसे समझना स्टार्ट करोगे तो और बेटर भी कर सकते हैं हम इसको, है ना। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड्स अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ, हाँ भाई ये समझ ले शाविज। तो पहले हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, अब हम मीन निकाल रहे हैं। तो मीन या एक्सपेक्टेशन भी हमसे पूछा जा सकता है। तो मीन या एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला है, This is in statistics, right? सॉरी, दिस इज This thing is used in statistics, right? यस, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी बोथ। Okay. तो यहाँ पे हमारे पास देखो, मीन का फॉर्मूला वैसे क्या है ये समझ ले एक बार। मीन हमसे पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पे पूछा गया है मीन या एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड्स, तो एक्सपेक्टेशन या मीन किसी भी रैंडम वेरिएबल का पूछा जा सकता है। यहाँ पे हमारे पास रैंडम वेरिएबल है नंबर ऑफ हेड्स, रैंडम एक्सपेरिमेंट था 3 टॉसेज ऑफ अ फेयर कॉइन, और हमसे पूछा गया था कि आप एक्सपेक्टेशन निकालो या मीन निकालो, कितने नंबर ऑफ हेड्स मिलेंगे 3 टॉसेज ऑफ अ फेयर कॉइन, है ना। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि आप प्रॉब्लम को समझ के आंसर कर सकते थे कि भाई फेयर कॉइन है, 3 टॉस कर रहे हो तो 1.5 टाइम्स हेड आना चाहिए, 1.5 टाइम्स टेल आना चाहिए, राइट। बट अगर हम ऐसे फॉर्मूले से निकल, अब ऑब्वियसली हम वहां पे सीबीएसई बोर्ड में मत करके आना, ये मार्क्स नहीं देंगे। तो वो वहां पे तो मेरे को लिखना पड़ेगा कैसे मेरी ये 1.5 आ रही है। लॉजिक यही कहता है, लॉजिक से करो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके अपने लिए लॉजिक सही है। और जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे बोर्ड्स में, तो आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला मैंने पिछले पेज पे लिखा हुआ है, बट फॉर्मूला छोड़, फॉर्मूला यही है जो मैं बता रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है? आप हर एक्स की वैल्यू को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो। जैसे कि एक्स की वैल्यू 0, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/8, तो 0 × 1/8। फिर ऐसी 1 × 3/8, 2 × 3/8, 3 × 1/8। हर एक्स की वैल्यू को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, जितनी भी वैल्यूज होंगी सबके साथ ऐसे ही करो, और सबको ऐड कर दो। ये मीन है। तो अगर मैं यहाँ पे मीन निकालना चाहता हूँ तो आई नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीन। मीन इज दिस सिग्मा पी आई एक्स आई। पी आई क्या है? प्रोबेबिलिटी। एक्स आई क्या है? एक्स की वैल्यूज। और पी आई है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो P1 x1 माने 1/8 × 0, P2 x2 माने 3/8 × 1, P3 x3 माने 3/8 × 2। सिमिलरली हम सबका सब निकाल लेंगे। तो अगर मैं इसकी यहाँ पे मीन वैल्यू डिफाइन करना चाहूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, 0 × 1/8 प्लस 1 × 3/8 प्लस 2 × 3/8 प्लस 3 × 1/8। आप इसको सॉल्व कर लो, 3/2 ही आएगा। 12/8 आ रहा है वैसे, आप देख सकते हो। ये 0 हो गया, ये 3, ये 6, ये 3, तो 3 + 6 + 3 12/8, यानी कि 3/2, विच इज 1.5, विच शुड बी करेक्ट। क्योंकि अभी हमने लॉजिक से भी देखा यही आंसर आना चाहिए था। चाहता तो था मैं आज लीनियर प्रोग्रामिंग भी हम लोग खत्म करें, बट टाइम ओवर हो गया तो नहीं कर पाएंगे। बट उससे पहले एक मोटिवेशन के लिए बस एक बात बताना चाहता था शाविज, मैंने ये बात अभी थोड़ी देर पहले भी बोली थी, और मैं फिर से बोल देता हूँ क्योंकि तू नहीं था क्लास में उस टाइम, कि इट्स जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि बस मोटिवेशन के लिए कि यार प्रोबेबिलिटी स्टैट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं तो यही पढ़ रहा हूँ, है ना। और मैं तुम्हें बता भी सकता हूँ काफ़ी अच्छे से, इस बारे में पढ़ा भी सकता हूँ काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स, अगर तुम्हारा पढ़ने का मन हो। अभी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, अभी तो तुम लोग 12th में हो। बट 12th के बाद अगर कुछ सही में फोड़ना है लाइफ में, और ये मेरा तो यार ड्रीम था, मतलब मैं तो काफ़ी एम्बिशियस हूँ। तो मेरे को है कि भाई मेरे को बहुत रिच रिच बनना है एकदम, बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं। मैं नहीं कह रहा तुम भी ऐसा ड्रीम बनाओ, सबके अपने अलग अलग ड्रीम होते हैं। मेरे भी और भी बहुत सारे ड्रीम्स हैं, बट वन ऑफ देम इज के मेरे को बहुत
बड़ा बनना है। तो उसमें मुझे लगता है कि अब ऑब्वियसली मतलब कैसे बन सकते हैं बड़ा, बहुत सारे तरीके हैं उसके भी अलग अलग, बट मेरे को लगता है पढ़ाई सबसे अच्छा ही तरीका है। जिसमें तुम अच्छे हो वो सबसे अच्छा तरीका है। मैं पढ़ाई में हूँ और पढ़ाई में भी मैं मैथ्स में हूँ, तो मेरे को लगता है मैथ्स मेरे लिए बेस्ट है। तो मैथ्स वैसे भी बेस्ट है। अगर पढ़ने में ही जाएंगे तो मैथ्स और इकोनॉमिक्स दोनों ऐसे सब्जेक्ट है जो काफ़ी तुम्हें आगे लेके जा सकते हैं। और जिनकी डिमांड है, जिन पे बेस्ड बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, रियल लाइफ प्रैक्टिकल प्रोसेसेस, मैथ्स और इकोनॉमिक्स के बिना नहीं चल पाएंगे। तो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और दोनों तुम्हें बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। ठीक है। और मैथ्स में भी Sir, स्टैटिस्टिक्स yeah, एंड economics. क्या बोल रहे हो शामिस, कुछ बोल। So, like, do you have economics? यू हैव इकोनॉमिक्स। Sir, I don't. अभी तो मेरे से पे भी मैंने भी नहीं पढ़ी इकोनॉमिक्स, अलग से ही पढ़ी है, जितनी भी पढ़ी है खुद से ही पढ़ी है, क्योंकि मैं तो बिजनेस में काफ़ी इंटरेस्ट है मेरा। तो मेरे को पसंद है बिजनेस, धंधा समझ आता है मुझे धंधा। तो इसलिए मेरे को जो है इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, तो मैंने पढ़ी है खुद से। बट हाँ, मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैंने भी इकोनॉमिक्स वैसे तो नहीं पढ़ी और मुझे किसी ने बताया भी नहीं उस टाइम के इकोनॉमिक्स इतनी इंपॉर्टेंट है। बट आज मैं देखता हूँ कि साइंस वाले बच्चों को तो बीट कर सकते हैं बहुत ईजिली इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है इकोनॉमिक्स की, और बहुत कम लोग, एक्चुअली प्रॉब्लम ये नहीं है, मैथ्स तो बहुत लोग पढ़ते हैं यार। प्रॉब्लम ये है कि अच्छे से नहीं पढ़ते ना यार। अच्छे सब नहीं है ना। सब अच्छा बनना भी नहीं चाहते, सब हो सकते हैं अच्छा, अच्छा तो कोई भी हो सकता है जो सफिशिएंट टाइम देगा, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। ये तो मैं मानता ही नहीं कि किसी के पास कम दिमाग है, किसी के पास ज्यादा। कम ज्यादा होगा थोड़ा बहुत, कम ज्यादा नहीं होता, मतलब हमारे यूज करने पे ही बात होती है, हम कितना कर रहे हैं, कितने हम एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, कितना हम टाइम दे रहे हैं। तो कोई भी बन सकता है, बट लोग करते नहीं। मैथ्स तो ऐसे, साइंस के तो कितने स्टूडेंट्स होते हैं, बट सब नहीं पढ़ते, सब नहीं करते उतना। और सबका इंटरेस्ट भी नहीं होता, सबके इंटरेस्ट भी अलग अलग होते हैं। जिसमें आपको इंटरेस्ट हो उसमें जाना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि वहीं पे ही आप अपने सबसे ज्यादा एफर्ट्स पुट कर सकते हो। तो मेरा इसमें, मैं इसमें पुट करता हूँ अपने एफर्ट्स। मैंने काफी प्रोबेबिलिटी पढ़ी है और शौक से ही पढ़ी है। मेरे कॉलेज में भी बहुत सारी प्रोबेबिलिटी मेरे को पढ़ाई गई 3 सेमेस्टर में। और स्टैट्स भी को काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई गई। और वहाँ पे जाकर मुझे और ज़्यादा समझ आया कि स्टैट्स प्रोबेबिलिटी में क्या क्या है, कितनी ज़्यादा चीज़ें और हो सकती हैं, कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो मैं बस ये बोल रहा था कि अगर तुम, मतलब लोग कहते हैं कि भाई हमें ये भी पढ़ लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ऐसे भी कर लो। बहुत लोग कंफ्यूज करेंगे, है ना। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम कंफ्यूज होना कितना चाहते हो, एक तो। और तुम कितने क्लियर हो अपने माइंड में कि हाँ, तुमने अपनी स्ट्रेंथ अपनी जल्दी से पहचान ली कि हाँ मेरी ये स्ट्रेंथ है भाई, मैं ये कर सकता हूँ, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। कोहली ने पहचान ली और उसने फिर पूरा एफर्ट्स दिया, पूरा अपना डेडिकेटेडली काम किया, तो भाई बन गया कोहली। नहीं तो कोहली को भी अगर मम्मी पापा लगा देते कि नहीं तो मैथ्स पढ़ ले, बड़ी प्रोबेबिलिटी निकाल, तो शायद नहीं कर पाता, क्योंकि उसका इंटरेस्ट भी नहीं था और उसका स्ट्रॉन्ग एरिया भी नहीं था वो। तो अपने स्ट्रॉन्ग एरिया को ढूंढो और उसमें मेहनत करोगे तो बिल्कुल होगा, अच्छा भी होगा, बहुत कुछ अच्छा होगा, है ना। और ये मैं बिल्कुल तुमसे 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। मैं हूँ वो लड़का जो कि अपनी स्ट्रेंथ को पहचान के, और जिसने उस पर काम किया। इतने बड़े बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, मैं छोटे लोगों की बात कर रहा हूँ, हम जैसे लोगों की, जिनमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो। मतलब आप टॉप 1 परसेंटाइल में जा सकते हो, और टॉप 1 परसेंटाइल में अगर आप पहुंच गए तो फिर कभी लाइफ में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। बीट आईआईटी, बीट एनी अदर कॉलेज, कॉलेज वॉलेज सब छोटी चीज़ें होती हैं। बहुत लोगों को आईआईटी मिलता है, बहुत लोगों को आईआईटी नहीं मिलता। और ऐसे ही बहुत लोगों को कोशिश करते हुए भी टॉप 1 परसेंटाइल में नहीं पहुंच पा रहे होते। बट अगर आप लगे रहोगे तो जरूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। आप अपने सब्जेक्ट में, आप अपनी चीज़ में जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसके टॉप 1 परसेंटाइल में पहुंच जाना, तो आप एक्सीलेंट वाली कैटेगरी में पहुंच जाओगे। और उसके बाद पैसे की तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। मतलब ये तो ईजी है। हाँ, कितना पैसा वो अलग बात है, मतलब 30 40 50 लाख तो हम लोग कमा लेंगे इजीली साल का। ये तो इजी है, कोई ज़्यादा बड़ी डील नहीं है, अगर हम अपने एरिया में स्ट्रांग हो तो बस इतना ही है। और ये स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी ऐसी चीज़ है कि मतलब अगर आप सिर्फ इसे ही पढ़ो और 12th करो अच्छे से, जो भी कर रहे हो अपना देखो, जो भी आगे कोर्स अटेंड करना है, मैथ्स करना है, जो भी अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज है उसी में ही जाने की कोशिश करना है एक तो। और वो कुछ भी हो सकते हैं, आप उन्हें आइडेंटिफाई करो अपने लिए। बट अगर मैथ्स स्ट्रॉन्ग एरिया है ना, तो ये कॉलेज है ऐसा ही, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट काफ़ी अच्छा है। वेरी टफ टू गेट इन, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि एक्सेप्टेंस रेट तो काफ़ी कम है, मतलब सीट्स ही नहीं होती। हमारी मेरे कोर्स में 12 सीट्स हैं कुल जनरल की। तो 12 सीट्स ऑल ओवर इंडिया, 24 टोटल सीट्स हैं। तो ऐसे इजी तो नहीं होगा टू गेट इन, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही हो जाएगा, काफ़ी टफ प्रोसेस है टू एडमिट।
इन द कोर्स, बट अगर हो जाते हैं तो फिर काफ़ी सॉलिड है कोर्सेज इनके। और ये स्टैट्स प्रोबेबिलिटी पढ़ाते हैं, कुछ नहीं पढ़ाते ये लोग। मतलब और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं अलग 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 अलग, मतलब कोर्सेज माने कोर्स वर्क, सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स बहुत सारे होंगे बट सब चीज़ें बेस्ड होंगी अराउंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, है ना। और ये वही पढ़ाते हैं। और पैकेजेस तो कॉलेज के हमारे काफ़ी अच्छे हैं, मतलब एवरेज एवरेज भी और सब कुछ, मतलब बहुत ही, मतलब मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ कि तुम जो भी करना चाहते हो ना वो करो। बट स्टैट्स प्रोबेबिलिटी एक ऐसा एरिया है कि अगर तुम इसमें मेहनत करोगे ना और तुम्हें ये पसंद आता है, तो इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा लाइफ में। मतलब चिल है लाइफ पूरी। और फिर इसमें भी आप कितना करना चाहते हो, अभी जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं तो अभी लेवल 2 पे ही हूँ। लेवल 1 तो ये है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स वाला। इसमें जो है भाई लोग बहुत फोड़ रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, मतलब करोड़ में पैकेजेस हैं। हम तो कुछ लैक्स में ही है, 30 40 50 पे ही रुक जाते हैं लोग। मतलब 55, सॉरी 89 मेरी क्लास से हाईएस्ट पैकेज गया है। बट 89 के बाद अगर हम बात करें तो 55 है। तो 55 lakhs इज ऑल्सो वेरी गुड, आई एम नॉट सेइंग के दैट्स नॉट गुड, वेरी गुड इन फैक्ट। बट हाँ मतलब ऐसे सोचे तो इससे भी ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं हम लोगों को। और उसके लिए भी पूरा स्टैट्स प्रोबेबिलिटी होता है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये लोग हेज फंड्स होते हैं जो कि स्टॉक मार्केट में काम कर रहे होते हैं, पूरा प्रोबेबिलिटी का टेस्ट होता है। मैं दे चुका हूँ एक टेस्ट, फेल हो चुका हूँ टू बी ऑनेस्ट। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को आता नहीं, काफ़ी आता है। बट उनके स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई हैं। वो लोग मतलब ऐसे इंडिया के कुछ हंड्रेड्स ही स्टूडेंट्स, मतलब कुछ 100 ही लोग होते हैं जो हेज फंड्स में काम कर रहे होते हैं, नॉट इवन इन थाउजेंड्स, in hundreds, the total hedge funds in India. And I think there will be like multiple companies working in this, but seats available नहीं है, काफी कट थ्रोट कंपटीशन है। और टफ है, टफ टू गेट इन, वेरी टफ टू गेट इन, वेरी टफ टू ब्रेक इन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन वेरी टफ टू सर्वाइव एज वेल। क्योंकि टफ है जॉब। मतलब सिर्फ स्टैट्स प्रोबेबिलिटी नहीं, थोड़ी सी कोडिंग भी लगेगी फिर, एक दो चीज़ें और आ जाती हैं। कोडिंग है एक, कोडिंग भी वैसी चीज़ है। तो अगर तुम्हें कोडिंग पसंद है तो कोडिंग करो, अगर तुम्हें स्टैट्स प्रोबेबिलिटी पसंद है ये करो, अगर तुम्हें इकोनॉमिक्स पसंद है वो करो। और इनफैक्ट मैं तुम्हें कहूँगा कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से बहुत सारे पैसे हम लोग कमा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने अभी तुम्हें इकोनॉमिक्स और मैथ्स के बारे में बताया तो साइंस बेकार है, केमिस्ट्री बेकार है, फिजिक्स बेकार है, सब अपनी अपनी जगह इक्वल इंपॉर्टेंट है। पर इन दोनों चीज़ों का तो काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, इसमें तो अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज है। और स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक लेवल 2, जहाँ तक मैंने तुम्हें बताया कि करोड़ में भी पैकेजेस है, राइट। और ये तुम बहुत जल्दी कर सकते हो सब चीज़ें। मैं तो फिर भी थोड़ा सा लेट हूँ, बट ये तुम 22 साल की एज पे भी कमा सकते हो करोड़ में पैकेजेस। कोई बड़ी डील नहीं है, मतलब सॉरी बड़ी डील तो है काफ़ी, आई वोंट से कि बड़ी डील नहीं है, बड़ी डील तो काफ़ी है। बट हाँ, बस वही है कि हमें जुनून होना चाहिए उस चीज़ का ना, कि हाँ करना है ये, करना है तो फिर करेंगे। अभी करेंगे, मेहनत लगेगी, बहुत बार फेल होंगे, बट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और तुम्हें दोनों को मैथ्स भी अच्छे से आता है, शावेज और शाहिद, मैं तुम दोनों के बारे में भी बात कर रहा हूँ। तो अगर तुम्हें सही लगता है तो ये सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दो। मैथ्स काफ़ी तगड़ी चीज़ है, मतलब सॉलिड चीज़ है बहुत। और इसकी जॉब्स वॉब्स की कोई कमी नहीं है इस सेक्टर में। और मतलब सब अच्छा ही है। तो जस्ट अ फ्यू वर्ड्स ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम माई साइड, कि कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम सिर्फ मैथ्स भी पढ़े लाइफ में, लाइफ सेट है, चिल है। मैंने तो सिर्फ मैथ्स ही पढ़ा है, पढ़ा और कुछ भी है बट मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ा है, ये मैं कह सकता हूँ। तो इतना भी करेंगे तो काम हो जाएगा। और क्वेश्चन करके ले आना नेक्स्ट क्लास में, 13.4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना। मैं लिख देता हूँ जरा यहाँ पे, जो भी प्रॉब्लम्स हो नेक्स्ट Yes, क्लास sir. में कवर करते हैं। और फिर उसके बाद यार हमारे दो चैप्टर और बचे हुए हैं, एक तो ये वेक्टर 3D और एक लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग एक क्लास का ही चैप्टर है। अगर तुम्हें लीनियर इनइक्वालिटीज आती है, नहीं भी आती तो भी एक क्लास का ही चैप्टर है, बस क्लास 2 घंटे की हो जाएगी। फिर वेक्टर 3D में 3 4 क्लासेस और लगेंगी। तो मोस्ट प्रोबेबली विद इन 15th हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद हम सिर्फ प्रैक्टिस, और मेरे हिसाब से तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए ढेर सारे। मेरे को तो बड़ा मजा आता है यार क्वेश्चन सॉल्व करने में। थ्योरी हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। वेक्टर 3D में भी Yes, कोई एज sir. सच बहुत थ्योरी नहीं है। बस 1 मिनट रुक जा, मेरे को 1 मिनट दे दे। तो वेक्टर 3D में भी कोई बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है, थोड़े बहुत फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, काफ़ी इजी है, स्कोरिंग है। वेक्टर 3D सबसे स्कोरिंग चैप्टर है आपकी सेकंड बुक का। वेक्टर 3D फिर से मैं बोलना चाहूंगा सबसे स्कोरिंग चैप्टर है आपकी सेकंड बुक का।
इंटीग्रेशन स्कोरिंग नहीं है, टफ है, मेहनत लगेगी मार्क्स लाने में। डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा सा स्कोरिंग है, अगर आपको सिर्फ काम की चीजें आपको पता होगी प्रोसेस क्या है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी भी मतलब इंटरमीडिएट ही है। अभी अभी तो हमारा प्रोबेबिलिटी बिल्कुल टफ नहीं है, मैं यही कहूँगा। बट हाँ, वेक्टर 3D तो कुछ भी नहीं है, मतलब पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, जैसे 10th का मैथ्स हुआ करता था। तो अगर आप इतना कर लो, ये 13.4 वेरिएंस वाले क्वेश्चन मत करना, 13.4 से वेरिएंस हमारे सिलेबस से हट चुका है। मीन वाले क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चंस सारे खत्म करके आना। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। आप बोल ले यार, बोल क्या पूछना चाहते हो। Second year. कैन आई व्हाट? So like I was having some doubts in exercise 13.3. हाँ पूछ ले, बिल्कुल बताओ। Some questions. What I said now are in exercise. एक मिनट रुक जा, मैं खोल रहा हूँ एक्सरसाइज, मुझे क्वेश्चन नंबर बता दे तब तक। Sir, 5 and 7. 5 and 7. No sir, not 7. Sir, not 7. 5 तो है ना? Only 5. ओनली 5, ठीक है। ये जो 13.3 में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए ना शायद, ये सब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, ये सब यूज करते हैं हम लोग। Okay. मतलब फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो एक यूज केस पे बेस्ड है। ये करते हैं लोग काम ड्रग आइडेंटिफिकेशन में। जितनी भी हेल्थ केयर कंपनीज होती है ना, जब नए नए ड्रग्स बनाती हैं, मतलब नए नए ड्रग्स माने कि नई नई मेडिसिन बनाती है, जैसे पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल के कुछ नया वेरिएंट अगर हमें बनाना है तो लोग इस तरीके से टेस्ट करते हैं, उसमें बेस थ्योरम लगता है। और हेल्थ केयर कंपनीज ये काम कर रही हैं, तो पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है एकदम, ये यूज हो रहा है, कोई बैठ के मेरी तरह कर रहा है जो हेल्थ केयर वाली कंपनी में काम करता है। तो इसमें दिया गया लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट। ठीक है जी, समझ गए इसका मतलब अगर हमें कोई प्रॉब्लम है और आपने एक ब्लड टेस्ट किया तो 99% वो बता देगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम थी। ठीक है। अब दूसरा बोल रहा है कि भाई हाउएवर द टेस्ट आल्सो यील्ड्स अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्टेड। इसका मतलब है कि अगर कोई हेल्दी पर्सन है ना, और हमने उसका टेस्ट किया तो 0.5% चांसेस इस बात के हैं कि वो शायद हम बता दें कि ये हेल्दी नहीं है। ठीक, एक सेकेंड रुक जाओ बस। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने कुछ कुछ चीजें बनाई थी, A B1 B2 ऐसे करके इवेंट्स बनवाए थे, पता नहीं नाम मैंने उनके क्या क्या दिए होंगे, बट ऐसे ही कुछ। मैं 3 इवेंट्स, सबसे पहले तो हम ये डिसाइड कर लें कि हमें करना क्या है और वो कितने तरीके से हो सकता है। ठीक है जी। ओके, एंड however the test, हाँ ठीक है, well, probability 5, the test will imply he has the, ठीक है। If 0.1% of the population actually has the disease, what is the probability that a person has the disease given that his test result is positive? ठीक है भाई, तो एक है टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव हो सकता है, एक टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव हो सकता है, और दो बातें ये है कि वो एक्चुअली पर्सन पॉजिटिव था या नहीं था। सही बात है, चार अलग अलग चीजें हैं यहाँ पे इन्वॉल्व। एक, हम टेस्ट कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि भाई हम लोगों ने एक पर्सन आया टेस्ट कराने। अब या तो वो पर्सन हेल्दी होगा या तो वो पर्सन अनहेल्दी होगा। ठीक है, हेल्दी होगा तो हमारा टेस्ट कोई रिपोर्ट देगा, अनहेल्दी होगा तब भी हमारा टेस्ट तो कोई ना कोई रिपोर्ट देगा। हेल्दी होगा और सॉरी अनहेल्दी होगा और टेस्ट भी हमारा यही बताएगा कि अनहेल्दी है, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 99%, उसने बोला हुआ है, राइट। और Yes. और हेल्दी होगा
बट टेस्ट बोल देगा कि नहीं हेल्दी नहीं है, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.5%। ठीक है, फॉल्स पॉजिटिव बोलते हैं इस चीज को बाय द वे। और 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज। ठीक है जी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज द डिजीज गिवन दैट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज द डिजीज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। ठीक है जी, कूल है। तो हम ये कहना चाहते हैं B1 और B2 को ऐसे डिफाइन कर लेते हैं, पर्सन हैज द डिजीज, या फिर पर्सन इज हेल्दी। Healthy means he doesn't have disease. हाँ, ही डजंट हैव द डिजीज। ठीक है जी। और ए जो है हमारा इवेंट वो ये है कि प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज द डिजीज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। तो ए हमारा बता रहा है टेस्ट रिजल्ट है पॉजिटिव। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या बताएगा? Negative. टेस्ट रिजल्ट इज नेगेटिव। हम क्या ढूंढना चाहते हैं? सबसे पहले तो हम ढूंढना चाहते हैं गिवन दैट, गिवन क्या है जी? गिवन है हमें क्वेश्चन में, गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। ओके, तो हम ढूंढना चाहते हैं कि एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज द डिजीज। तो हम ढूंढना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 पर्सन हैज द डिजीज गिवन दैट ए टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। करेक्ट बात है? Yes. ठीक है। अब कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो हमें इसका फॉर्मूला डिफाइन, हमें पता है सारी चीजें वैसे, बट कोई नहीं, फिर स्टार्ट लाइक दिस। या तो पर्सन को डिजीज होगी या तो नहीं होगी। तो पर्सन को डिजीज होगी तो इस बात की प्रोबेबिलिटी है B1, और पर्सन को डिजीज नहीं होगी इस बात की प्रोबेबिलिटी है B2। राइट? मतलब हाँ, पर्सन Yes. को, पर्सन इज हेल्दी तो इस बात की प्रोबेबिलिटी ऑफ B2। राइट, एक सेकंड रुक जाओ बस। ठीक है, तो हमें से पूछा क्या गया है? पूछा गया हमसे कि what is the probability that a person has the disease, person has the disease given that his test result is positive। ठीक है, तो टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव बोला गया है। टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव कब आ सकता है? हेल्दी का भी आ सकता है और अनहेल्दी का भी आ सकता है, दोनों ही केसेस पॉसिबल है। पहली बात तो Yes. हेल्दी का टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आने के क्या चांसेस है? अच्छा चल, चाहिए छोटी छोटी बातें लिख लेते हैं। 1%. 1%। राइट, हेल्दी का तो टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आने के चांसेस है, नहीं नहीं, 0.05%, 0.5% false positive result, 0.5% of the healthy person tested. However, the test also yields a false positive result for 0.5% of the healthy person tested, right? तो अगर हेल्दी है कोई पर्सन और उसका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.5%। और साथ साथ, तो पहले कुछ चीजें लिख लेते हैं फिर उसके बाद वापस आ जाएंगे इस पे। तो पहली बात तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 क्या है? 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज। कितनी पॉपुलेशन को डिजीज है? 0.1%। तो 0.1% का मतलब है 0.001 प्रोबेबिलिटी होगी इसकी, डिवाइड बाई 100 कर देंगे। करेक्ट है? Yes. प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 क्या है? यानी कि पर्सन इज हेल्दी। तो हमें पता है कि 1000 में से, 1000 में से सिर्फ एक ही बंदे को डिजीज है। काफी, मतलब डिजीज कमी होनी चाहिए ऑब्वियसली। और 999 को डिजीज नहीं है, हेल्दी है, ये पता है हमें। अब हमें और क्या क्या बातें पता है? हमें ये पता है ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट। तो यानी कि हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा अगर पर्सन को डिजीज है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन B1 मुझे पता है। अगर पर्सन को डिजीज है तो उसका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? 99%, यानी कि 0.99। तो अगर एक ये फिगर दी हुई है और एक और फिगर दी हुई है 0.05% वाली,
सॉरी 0.5% वाली, 0.5% वाली क्या है कि अगर पर्सन हेल्दी है बट उसका रिजल्ट आता है पॉजिटिव, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन B2, इस बात का भी हमें पता है 0.005 है, राइट। Yes. तो क्या मैं ये बता सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी, अब देख इसका अगर हमें पता है तो हमें एक बात और पता है, इन दोनों से हमें दो चीजें और पता है। क्या? अगर B1 यानी कि पर्सन को डिजीज है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, इसके चांसेस है 0.99। तो अगर पर्सन को डिजीज है और उसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट होगा, क्या इसकी बात ये भी तो पता ही है हमें? नहीं क्या? अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन B1 पता है, यानी कि पर्सन को डिजीज है और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, इस बात की 99% चांसेस है। तो अगर पर्सन को डिजीज है और उसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, इसका भी तो पता है, 1 में से माइनस कर दे इसको। ठीक है जी। दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन B2 पता है 0.005 है, यानी कि अगर पर्सन हेल्दी है तो उसका फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है 0.5% प्रोबेबिलिटी के साथ, यानी कि 0.005। तो अगर पर्सन हेल्दी है और हम कह रहे हैं कि फिर भी उसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा, जो कि आना भी चाहिए, अगर पर्सन हेल्दी है तो रिजल्ट नेगेटिव आना चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है, यानी कि हमारा टेस्ट अच्छा है। 0.9. 0.995, करेक्ट। अब सबसे पहले तो ये डिफाइन करते हैं कि हमारे पर्सन की रिपोर्ट पॉजिटिव कब कब आ सकती है। भाई वो कह रहे हैं कि रिजल्ट तो पॉजिटिव आ गई, ए तो हो चुका है, गिवन तो ए तो हो ही चुका है, ए हो चुका है यानी कि टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ चुका है। तो टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव किस किस केस में आ सकता है? या तो पर्सन को डिजीज हो तब पॉजिटिव आ जाए, है ना, या तो पर्सन को डिजीज ना हो और तब पॉजिटिव आ जाए, दोनों ही केसेस पॉसिबल है। क्यों शाविस? पर्सन को डिजीज हो तो पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए, या पर्सन को डिजीज ना हो तो पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए, और हम उसमें से कौन सा चाहते हैं कि पर्सन को डिजीज हो तभी पॉजिटिव रिजल्ट आए सर, राइट। Yes. तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, यानी कि पर्सन को डिजीज है तब उसका रिजल्ट पॉजिटिव आए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन B1, या फिर Yes. एक, बस मेरे को एक सेकंड देते,